तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि R2 to R2 linear transformation xy is equal to 2x plus y. Choose the set of correct option. यहाँ हमें ये चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो कंडीशन होती हैं। पहला ये होता है कि अगर दो वेक्टर v1 और v2 हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2, दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का सम इक्वल होना चाहिए। एंड इफ c इज ए स्केलर then transformation of cv1 is equal to c into transformation of v1। ये दोनों कंडीशन हमें चेक करनी है। तो लेट्स v1 is equal to x1 y1 and v2 is equal to x2 y2। so v1 plus v2 is equal to x1 plus x2 and y1 plus y2। so transformation of v1 plus v2 is equal to transformation of x1 plus x2 and y1 plus y2। and by this expression 2xy, the transformation will be 2x1 plus 2x2 and y1 plus y2। this is equation number 1। then let's calculate the individual transformation of v1 plus transformation of v2। v1 transformation will be 2x1 y1 and v2 transformation will be 2x2 y2। and when we will add, it will become 2x1 plus 2x2 and y1 plus y2। this is equation number 2, and 1 and 2 are equal, so first option is correct। and for second option, transformation of cv1 is equal to transformation of cx1 cy1, and it will become 2cx1 and cy1 by the transformation representation, and the tv1 will be c2x1 y1, and multiply c will be also c2 or 2c, it is a scalar x1 plus cy1, and 1 and 2 equal, so second option is also right। then it is a linear transformation, third is also right। okay, next question. Here also a linear transformation is given, R2 to R2, and we have to check it is a linear or not, and these all the two condition also। so let's v1 is equal to x1 y1, v2 is equal to x2 y2, v1 plus v2 is equal to x1 plus x2 and y1 plus y2। so here transformation given that xy is become x minus 1 and y plus 1। so t v1 plus v2 will become x1 plus x2 minus 1 and y1 plus y2 plus 1। so this is equation number 1, and let's calculate the individual transformation। transformation of vector v1 will become x1 minus 1 and y1 plus 1, and transformation of v2 will become x2 minus 1 and y2 plus 1। then addition of individual transformation will become x1 plus x2 minus 2 and y1 plus y2 plus 2। here we can clearly see that the equation number 1 and 2 is not equal, so first option is wrong। second option, the scalar multiplication, let's check। cv1 will be t of cx1 cy1, it will become cx1 minus 1 cy1 plus 1, equation number 1। and transformation of v1 is x1 minus 1 y1 plus 1 multiply with c, it will become cx1 minus c cy1 plus c, this is equation number 2। and 1 and 2 is not equal, so option 2 is also wrong, so it is not a linear transformation, option 3 is wrong, 4 is right। okay, and next question. Here is a transformation given, xy will become x comma 0। so what is asking, then which of the following options is true? Is 1 1 and 2 not on 2, let's have to check। xy will become x comma 0, so 5 comma 6 will become 5 comma 0, and 5 comma 7 also become 5 comma 0, so it is not 1 1। okay, so R2 to R2 है ट्रांसफॉर्मेशन, और 1 1 नहीं है, तो 1 2 भी नहीं होना चाहिए। देखें जरा, 5 कामा 0 हैज ए प्री इमेज बट 0 कामा 5 ना, क्योंकि R2 to R2 ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें R2 की साइड 5 कामा 0 की तो प्री इमेज मिलेगी, बट 0 कामा 5 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सप्रेशन ही ये है x कामा 0 है, तो ऑन 2 भी नहीं होगा, तो नाइदर ऑन 1 नॉर ऑन 2। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a linear transformation expression is given like that, R2 to R3, which of the following option is true? 1 बार ऑन 2 चेक करना है हमें, तो हम यहाँ पर बेसिक स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेंगे, 1 कामा 0 and it will become 2 5 1, and we will write in the standard order basis of R3 form, so 2 into 1 0 0, 5 into 0 1 0, and 1 into 0 0 1,
then 0 comma 1 become 3 comma minus 1 comma 6 by this expression. So it will be written that 3 and minus 1 plus 6 with the form of in the form of basis. So the matrix will be 2 5 1 3 minus 1 6, and we will have do it in a row reduced echelon form. Then we can get the matrix like 1 comma 0 0 comma 1 and 0 0. So here is a 2 pivot entry, 2 rank is 2, so no nullity is 0. So nullity is 0 matlab it's is a 1 1 transformation, and its rank is 2, whereas the size of codomain is 3, so it is not equal, so it is not onto, but 1 1 but not onto. 1 1 for nullity is 0 and not onto is for rank is 2 and the dimension of W is 3, so it is not onto. Okay, on to the next question. Here written transformation is R2 to R2. Transformation is given, which of the following option is represent the TXY. We have to get the transformation formula. So we have to get the XY. तो XY को हमें लिखना होगा इसके बेसिस के फॉर्म में, जो कि दिया हुआ है 1 कमा 0 और 0 कमा 1. So it will become x into 1 comma 0 and 0 comma y into 0 comma 1. Transformation of x is equal to x into transformation of 1 comma 0 0 comma 1. Then it will become 3x 2x. It will become y comma y 5 5 5. So dxy will be 3x plus y and 2x plus y 5 5. 3x plus y 2x plus 5 5. Option is correct. Go to the next question 6. Here is a linear transformation R2 to R2. Transformation is given. We have to find the t. So here the basis has taken 2 comma 1 and 1 comma 3, not the standard basis, and we have to find the xy. For xy we have to find the transformation of standard basis, then we can get the transformation of xy. So we will write the standard basis 1 comma 0 in this basis form, 2 comma 1 and 1 comma 3, which I have given in the question. So 1 comma 0 can be written as 2 comma 1 multiplication a and b into 1 comma 3. We have to get the value of a और b. a और b की हमें वैल्यू निकालनी होगी. यहाँ से 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इक्वेट करने पर, एंड a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. इक्वेशन को सॉल्व करने पर a की वैल्यू आएगी 3 कमा 5, और वहाँ से हम पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी माइनस 1 कमा 5. तो 1 कमा 0 को हम लिख सकते हैं 3/5 तो 2 कमा 1 प्लस माइनस 1/5 1 कमा 3. इसी तरीके से 1 कमा 0 को भी हमें लिखना होगा 3/5 इंटू टी ऑफ 2 1 एंड माइनस 1/5 इंटू 1 कमा 3. 1 कमा 0 का ही अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कमा 0 बनेगा 9/5 कमा 6/5 बनेगा. तो 9/5 कमा 6/5 आ रहा है क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू निकाली है, तो ए और बी की वैल्यू फिर हम यहाँ पर रख दिए हैं इसके स्टैंडर्ड बेसिस में. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कमा 0 आया है वो 9/5 कमा 6/5 आया है. तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कमा 0 जो है 9x/5 एंड 6/5 आ जाएगा. इस तरह में 0 कमा 1 बेसिस को भी इसके गिवन बेसिस के फॉर्म में लिखना होगा. तो यहाँ इसके लिए हमें a और b को कैलकुलेट करना होगा. 0 कमा 1 विल बिकम 2a प्लस बी कमा 3a प्लस 3b. तो ये इक्वेशन से हमें a और b कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से b की वैल्यू आएगी 2 कमा 5 और 2 कमा 5 को पुट करेंगे तो हम a की वैल्यू माइनस 1 कमा 5 आएगी. तो हमारा जो 0 कमा 1 बेसिस है वो कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस 1/5 कमा 2 कमा 1 2/5 कमा 1 कमा 3. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 कमा 1 विल बिकम माइनस 1/5 स्केलर आउट होगा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 कमा 1 और 2/5 वाला हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कमा 3. और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3 कमा 2 और 0 कमा 0. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 कमा 1 विल बिकम 3 का माइनस 3/5 एंड माइनस 2/5. तो हमें y का मल्टीप्लाई करने के तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 कमा y विल बिकम माइनस 3y/5 माइनस 2y/5. तो अब हमें 0 कमा y का ट्रांसफॉर्मेशन और ऊपर हमें मिला है x कमा 0 का ट्रांसफॉर्मेशन. ये दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कमा y मिल जाएगा जो कि बन जाएगा 9x/5
-3y/5 और ऊपर हमारा 6x/5 था, तो ये 6x माइनस 2y/5, हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y मिल गया। तो ये देखते हैं हम ऑप्शन क्या है, 9x माइनस 3y/5 और 6x माइनस 2y/5। क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट है? 9x माइनस 3y, 6x माइनस 2y, 1/5 कॉमन लिया तो ऑप्शन इज करेक्ट। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि R2 to R2 a linear transformation so that xy is equal to x comma 0, which of the following matrices correspond to the T represent the standard order basis of R2 1 0 0 1 for both the domain and codomain। तो हमें ये मैट्रिक्स निकालने, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है 1 कमा बेसिस है 1 कमा 0 0 कमा 1 के रूप में। तो हम लिख लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कमा 0 हो जाएगा, x 0 है तो 1 0 हो जाएगा, और इसका जो फॉर्म होगा 1 इंटू और 0 इंटू हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 कमा 1 हो जाएगा 0 0, क्योंकि x कमा 0 है, तो ये हो जाएगा 0 0, तो मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 0। दिस इज राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि R2 to R2 is a linear transformation such that xy is equal to x plus y and x minus y. Which of the following matrices correspond to T respect to the standard basis of R2 for the domain and 1 1 and 1 minus 1 for the codomain? मैट्रिक्स निकालनी है हमें, ठीक है। तो टी डोमेन और कोडोमेन की मैट्रिक्स बेसिस दिए हुए हैं। चलो, टी 1 कमा 0 क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, उसको हम लिख लेंगे कोडोमेन के मैट्रिसेस के फॉर्म में a इंटू 1 कमा 1 एंड b इंटू 1 कमा माइनस 1। तो यहाँ से इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए हमारी इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 कमा 1 निकालेंगे तो 1 कमा माइनस 1 हो जाएगा, जो कि ये दिया हुआ x प्लस 1 वाई एक्स माइनस वाई के तरीके से। तो इसकी जो रिटर्न तरीका होगा वो 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो जाएगी। ओके, थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है W दिया हुआ है, एक वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस ऑफ R3 है, और बीटा जो है बेसिस है W का। फिर T एक R3 to R2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसकी वैल्यूज भी हैं। व्हाट विल द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T? ओके, तो T दिया है 2 1 0 1 कमा 0 जाता है, और इसको हम लिख लेंगे A और B। उसी तरीके से फिर A और B हमें कैलकुलेट करना होगा। तो A इंटू और हमारा जो R2 का बेसिस दिया हुआ है वो क्या है, R2 का 1 1 और 1 माइनस 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। a प्लस बी 1, a माइनस बी 0, यहाँ से a 1/2 आएगा और b भी 1/2 आएगा। इस तरीके से हम जब t 1 0 1 का निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, 0 कमा 1 है, यहाँ भी a का और b का कोफिशिएंट लेकर के हम वैल्यू करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ पर इक्वेट करेंगे प्लस बी 0 a माइनस बी 0, तो a हमारा आएगा 1/2 और b हमारा आएगा -1/2। तो यहाँ पर हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी t, वो बनेगी 1/2 और 1/2 1/2 माइनस 1/2 कॉमन लेंगे तो 1 1 1 माइनस फॉर्म में ये मैट्रिक्स आ जाएगी। क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन 10th। यहाँ पर दिया है कि बीटा एक बेसिस है 1 0 0 1 एंड लेम्डा एक बेसिस है 1 1 1 माइनस 1 with two bases of R2 if ABCD is the matrix representation of linear transformation T R2 to R2 with respect to the beta for both the domain and codomain, what will be the matrix representation of T with respect to the lambda gamma for the domain, beta for the codomain? बीटा फॉर द कोडोमेन। तो यहाँ पर पहले हमें मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी, तो टी ये है बोथ डोमेन एंड कोडोमेन, बीटा फॉर द बोथ डोमेन। तो टी 1 कमा 0 को हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें दिया है ए इंटू 1 कमा 0 और सी इंटू 0 कमा 1, तो 1 कमा 0 बन जाएगा ए सी, एक्स कमा 0 बन जाएगा ए एक्स और सी एफ, और 0 कमा 1 बन जाएगा बी इंटू 1 0 एंड बी इंटू 0 1, तो टी 0 1 बन जाएगा बी कमा डी। जैसे कि हम मैट्रिक्स बनाते हैं इसी तरीके से हम इसे कोफिशिएंट को इसके बेसिस से मल्टीप्लाई करके हम टी ऑफ 0 कमा वाई निकालेंगे, तो ये बन जाएगा बी वाई डी वाई। 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो टी एक्स वाई हमारा आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई। अब यहाँ पे आगे जो है हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आ गया है। अब हमें जो अगला कैलकुलेशन करना है वो करना है गामा फॉर द डोमेन। गामा है 1 1 1 माइनस 1, और बीटा फॉर द कोडोमेन स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस पे। बट मैंने यहाँ आगे कैलकुलेशन जो है गामा फॉर द डोमेन एंड कोडोमेन बोथ के लिए कर लिया है।
तो ये बहुत ही एक लंबा कैलकुलेशन हो गया है। आगे फिर मैंने ठीक भी किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत ही लंबा कैलकुलेशन हो गया है। यहाँ पर ए की वैल्यू ए तरीके से आई है, बी की वैल्यू कुछ इस तरीके से, मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बना है। फिर मैंने चेक किया, ऑप्शन में था ही नहीं। तो अब वही देखिए, हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये है और बीटा ये है, गामा ये है। तो हमें गामा लेना है डोमेन साइड में और बीटा लेना है को डोमेन साइड में। तो हमें वन वन की जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, ए प्लस बी और सी प्लस डी बनेगी। तो ये जो बनेगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई वन जीरो और सी प्लस डी मल्टीप्लाई जीरो कामा वन। और वन कामा माइनस वन की जो, सॉरी, वेक्टर बनेगा वो ए माइनस बी और सी माइनस डी बनेगा। तो इसको होगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई वन कामा जीरो, सी प्लस डी मल्टीप्लाई जीरो कामा। तो मैट्रिक्स हमारे ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए माइनस बी, सी माइनस डी। सिंपल सा आंसर। देखो मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया था। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं। ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए माइनस बी, थर्ड ऑप्शन सही। ओके। तो